हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। इज अ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टू हाउस ऑफ द स्टेट legislature. There is a most important topic here. The legislative assembly of Vidhan Sabha, like the Lok Sabha, occupy a dominant position. Legislative council in Vidhan Parishad enjoy the much less power as compared to the power of Vidhan Sabha. Even in relation to the ordinary bill, the Rajya Sabha at the center enjoy equal power is a consideration of the bill other than a money bill. But but Vidhan Parishad enjoy is a much lesser is a power to the compared to the Rajya Sabha. The relative position of the Vidhan Sabha is a Vidhan Parishad is under here the most important in a relation of the ordinary bill. What is the relation of the ordinary bill here? In case of parliament, if there are disagreement of between the two house over on the ordinary bill, the president summons a joint sitting of both house, and if the bill is passed there by the majority of the vote, the bill is taken to pass of both house of the parliament. But this is a provision of the joining sitting does not be exceed in a state. There is the most important, and although there is ordinary bill can be originate in either house of the state legislatures, let is the both is houses has a unique power. If a bill pass in the Vidhan Sabha, it is transmitted to their Vidhan Parishad for a considerations. When it is passed by the Vidhan Parishad without any amendment in the bill, is sent to be the governor for his assent. In case the bill is rejected by their is a pre-shad or the more than 3 months, escape the without or the bill is begin passed by their parishad or bill is passed with the amendment to which is the Vidhan Sabha is does not be agree. The Vidhan Sabha is may be passed the bill against the some are in the subsequent season after that there is the bill of the again sent to the Vidhan Parishad. If the Vidhan Parishad does not be returned bill within the period of the 1 month, the bill is seemed to have passed by the both houses of the state. The legislature there is a sent to be governor for his assent. Thus, the Vidhan Parishad can delay with the will of maximum period of 4 months. On the other hand, if the bill is the first passed by the Vidhan Parishad and rejected by the Vidhan Sabha, the bill is rejected cannot be become a law. The next year, in the relation to the money bill, like in the Lok Sabha money bill is introduced first of Vidhan Sabha. It cannot be initiated in the Vidhan Parishad. The Speaker of the Vidhan Sabha certifies whether to particular bill is a money bill after the bill passed in the Vidhan Sabha. It is sent to be the Vidhan Parishad. The Vidhan Parishad get a 14-day time to be a consider the bills. If the is a Parishad is a pass the bill, it is sent to the governor for the assent, and if the bill is not be returned by their Vidhan Parishad within the 40 day, it is a deemed to have to the pass by their Vidhan Parishad. If it is suggest the content change in the bill and the sent to be Vidhan Sabha, the Vidhan Sabha may be accept to reject the change of suggested by the Parishad, and the bill is then to the sent to be governor for assent, who is bounded to give a assent. The next topic is a control over the executive. There is a most important topic here. The Council of Minister of State is responsible to be Vidhan Sabha only and remain in the office so long as it is enjoy the confidence of the Assembly, Vidhan Sabha. Otherwise, the member is a Vidhan Parishad can ask the question and introduce the adjustment of motion and calling attention and notice, etc. Let's say Vidhan Parishad cannot remove the government. The next topic is the electoral function. Only the elected members of the Vidhan Sabha are entitled to the participate in the election of the President of India. The member of the Vidhan Sabha do so in their capacity as the member of the electoral colleges, and but the member of Vidhan Parishad are not be entitled a vote is the election of the president. Member of the Rajya Sabha from the each state
are the elected only by the member of assembly and not be a council. The the above discussion make it clear that the Vidhan Parishad is a powerless and non-influential house. It has become a secondary house. Thus, many states prefer to have to the cameral as a legislature. But the Vidhan Parishad is not a superflow. It is a server as the check on their drastic regulations is made by the Vidhan Sabha. By highlighting the short bills coming or defect of the bill, it is saying there is a burden of the Vidhan Sabha as some bill are initiated in their Vidhan Parishad. यहाँ पर जैसे हमारा टॉपिक आया है विधान मंडल के दोनों सदनों की तुलना। देखिए, दोनों सदनों की तुलना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप तुलना नहीं कीजिएगा आपको समझ नहीं आएगा कि दोनों में क्या अंतर है। कहते हैं लोकसभा की तरह विधानसभा भी अधिक प्रभावशाली सदन है। विधानसभा की तुलना में विधान परिषद की शक्ति काफ़ी कम है, चाहे साधारण विधायक का भी प्रश्न क्यों न हो। धन विधायक के अतिरिक्त बाकी सभी विधायकों को पारित करने में भी विधान परिषद की शक्तियां काफ़ी कम मानी जाती है। विधानसभा तथा विधान परिषद की तुलना स्थिति इस प्रकार है। देखा जाए तो साधारण विधायक बिल के संबंध में ये बात साफ जाहिर हो जाता है कि संसद में यदि दोनों सदनों के बीच किसी साधारण विधायक को लेकर सहमति न हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, और यदि वहां बहुमत से विधायक पारित हो जाए तो उसे दोनों सदनों से पारित समझा भी जाता है। परंतु संयुक्त बैठक की यह व्यवस्था राज्य में ही नहीं है। यद्यपि साधारण विधायक जो है विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यद्यपि दोनों सदनों की शक्ति सामान्य नहीं है। यदि कोई विधायक विधानसभा से पारित होता है तो उसे विचारार्थ विधान परिषद में भेज दिया जाता है। जब विधान परिषद बिना किसी संशोधन के इसे पारित कर देती है तो विधायक राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज देता है। देखिए, सारी प्रोसीजर जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत जो होता था कार्य वही यहाँ पर भी होता है। यानी लोकसभा राज्यसभा में जो प्रक्रिया होती थी वो यहाँ पर राज्य स्तर पर भी देखने को आपको मिल रहा है। तो कहते हैं जो बच्चे समझदार हैं वो एक को याद करेंगे और दोनों ही साथ साथ में याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं इंटेलिजेंसी ही आपको काम आएगा, यहाँ ट्रिक कोई भी काम आने वाला नहीं है। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि अगर हम करें तो अगर नेशनल लेवल पे देखें और स्टेट लेवल पे देखें तो कई मानने में ये दोनों सामान्य ही नज़र आते हैं। तो इससे आप अगर एक को याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यही बात यहाँ पर भी दर्शा रहा है कि यदि विधायक परिषद द्वारा रद्द कर दिया जाता है अथवा विधायक पर परिषद 3 महीने तक विचार न करे अथवा कुछ संशोधन करके विधायक पारित कर दे, जैसे विधानसभा सहमत न हो, तो विधानसभा उसी सत्र में या अगले सत्र में विधायक को पुण्य पारित भी कर सकती है। इसके पश्चात विधायक फिर विधान परिषद को भेज दिया जाता है। यदि विधान परिषद 1 महीने के अंदर विधायक पारित करके नहीं भेजती है तो इसे दोनों सदनों से पारित माना जा सकता है, यानी पास माना जा सकता है, और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। और इसका अर्थ यह हुआ कि विधान परिषद किसी विधायक के अधिकतम 4 महीने तक भी रोक सकता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है पास हो जाता है, इसमें किसी तरह के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वित्तीय विधायक के संबंध में। देखिए, लोकसभा की तरह कोई भी वित्तीय विधायक पहले विधानसभा में रखा जाता है और यह विधान परिषद में जो है प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि विधायक धन विधायक है अथवा नहीं, यानी धन विधायक है अथवा नहीं, इस बात का जो है जांच पड़ताल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधानसभा से विधायक पारित होने के पश्चात विधान परिषद को भेज दिया जाता है और विधान परिषद को इस पर चर्चा के लिए सिर्फ 14 दिन ही मिलते हैं, यानी 14 दिन के अंतर्गत जो है वो अपना विचार विमर्श रख सकता है। यदि परिषद विधायक पारित कर दे तो इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि परिषद द्वारा 14 दिन के अंदर विधायक पास नहीं भेजा जाता है तो इसे परिषद द्वारा जो है प्रमाणित माना जाता है, यानी अगर 14 दिन में साइन नहीं होता है, विचार नहीं होती है, तो ये ऑटोमेटिक जो है पारित माना जा सकता है। यदि परिषद विधायक में कुछ परिवर्तन संशोधन सुझाती है और विधानसभा को भेज देती है तो विधानसभा उन सुझावों को स्वीकार भी कर सकता है और नहीं भी तो इसके पश्चात जो विधायक राज्यपाल की उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, जिसे मानने के लिए वो बाध्य हो जाता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और वह तब तक अपने पद पर बने रहती है जब तक उसे विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है। यद्यपि विधान परिषद के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, काम रोके या स्थगन प्रस्ताव रख सकते हैं अथवा जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी ला सकते हैं। यद्यपि विधान परिषद मंत्रिपरिषद के जो है पदस्थ नहीं कर सकता, यानी पद से नहीं हटाने का प्रावधान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष चुनाव संबंधी कार्य। देखिए, केवल विधानसभा के निर्वाचन सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। वो निर्वाचन मंडल का सदस्य होने के नाते मतदान भी कर सकते हैं, परंतु विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान नहीं कर सकते। सभी राज्य में राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन भी विधानसभा के सदस्य ही करते हैं, विधान परिषद को नहीं। उपयुक्त चर्चा की से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि विधान परिषद शक्तिहीन है, जो प्रभावहीन सदन है, एक गौण सदन बन चुका है। इसलिए अधिकतर राज्य एक सदनीय विधायक के पक्ष में रहता है, परंतु परिषद बिल्कुल ही दिखावा मात्र भी नहीं है। यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में लाए गए विधायकों पर अंकुश का कार्य भी करती है और विधायकों की कमियों तथा कमजोरियों को उजागर भी करती है। यह सभा को बोझ को भी कम कर देती है, क्योंकि कई विधायक विधान परिषद में प्रस्तावित किए जाते हैं।